questions that you have. Let me tell you on, from the channel side, from Sony Entertainment Television, we've kind of brought many formats, both international as well as homegrown. And, all the viewers have watched them over the years and, really supported and made them successful. This is one such format that we are bringing. Sony Entertainment Television is deeply committed to comedy as a genre. We already have one very successful comedy show. And, this is my personal feeling that, in India, the comedy as a genre is very underrepresented. By that what I mean is that the appetite for comedy as a content is much more than all the channels that are catering to. So hence this particular show we thought of bringing. It's a fully homegrown show helmed by some of the best creative minds that are available in the industry today, with some eclectic mix of ensemble cast. Very soon, the captain of the ship, so to speak, the Shambhu Dada will kind of come and introduce each one of you to you. So I'll not take much time. The show is very special. It's called The Drama Company because, the format is very different than all the shows that you've seen. I'm saying from years, from the beginning, if you see comedy, there have been many comedy shows. First, it was stand-up comedy, then it became gags, then it became, small acts, and then, the talk shows, etc. This one is actually a derivative of all of them together. So when you see the show, you will realize that it's very different, very fresh, and I'm not saying it because, I have to come here and say that. It's really different. The show is put together by, as I said, some of the best creative minds. But two of them I would like to mention. Neeti and Preeti, Neeti Simos and Preeti Simos. I think they have worked on multiple shows across channels, and all of them are successful. Hopefully this one also will be successful. So, all the best. Neeti is here, of course. Preeti is missing. So, congratulations, Neeti. And of course, all that you see, this entire light, sound, drama. The drama in the Drama Company is brought by Frames Production. Hemant is sitting there. So, thank you, Hemant. And Neeti, Preeti, of course, they have put it together. And without further delay, I'd like to call, the Grand Master, the captain of the ship, Shambhu Dada. Worked together on many shows across many channels. And so far, whenever we work together, the show has been successful. Hopefully this one also will be successful. Dada, you've seen him in various other genres, but for the first time, he's doing a show after a lot of requests that we've kind of, yeah. So he's agreed to do this show. Over to you, Dada. Now you can, get your team of. बाकी चीज भी तो बोल दे. इधर में रुक क्यों गया? क्या रिक्वेस्टेड दादा? फिर दादा ने क्या कहा? ये नहीं कहा. तो मैंने ये कहा कि इतनी अच्छी दोस्ती हमारी कहाँ फंसा रहा है भाई. एक डांस जॉनर है, ठीक है, समझ में आती बातें. 1, 2, 3, 4 समझ में आती. कहाँ लय छोड़ा किसी ने, कहाँ चोरी की है किसी ने, मिस कर दिया किसी ने. लेकिन ये जॉनर ऐसा है कि आई एम वेरी नर्वस. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. बिकॉज यहाँ जितने कलाकार हैं वो सभी माहिर हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ वेरी वेल. सो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने. मैं हूं शंभू दादा. अब ये शंभू दादा कौन है? मैं हूं शंभू दादा. ये एक ड्रामा कंपनी बनाई मैंने बहुत ही निकम्मे लोगों के साथ. ये हर हफ्ते सैटरडे संडे रात के 8 बजे आपके सामने एक नाटक पेश करेगा. ये कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा. लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये गलती करेगा,
करेगा करेगा। और मैंने ये सोचकर इन लोगों को लिया है क्योंकि इसके पीछे मेरा भी एक कोई मतलब है। मतलब के बगैर तो दुनिया नहीं चलती। ये मेरा एक बिजनेस। किस तरह के बिजनेस के आप पैसे देकर टिकट खरीदेंगे, शो देखकर मजा लेंगे, और मैं वो जो आप टिकट खरीदेंगे उसका मजा लूंगा, माल मैं कमाऊंगा। मैंने इन्हें ये ढोस दिया है कि मैं तुम लोगों ने अगर बिना गलती के जिस दिन शो ठीक कर दोगे, मैं तुम्हें दुनिया का सैर कराऊंगा अराउंड द वर्ल्ड इन $5। और मैंने उन्हें यह भी बताया है कि देखिए, मैं अपने आप को फेंकू नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं हूं बहुत ही लंबा। मैं उनको यह बताया है कि दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नामचीन नहीं है जिन्हें मैं नहीं जानता। वेदर इट इज मेसी टू रोनाल्डो टू डोनाल्ड ट्रम्प टू पुतिन टू टेरेसा मे टू एनीबॉडी यू नेम। तो मैंने इनको बताया जिस दिन तू शो ठीक कर लेगा, मैं वीजा लगाऊंगा और तुम लोगों को सैर करवाऊंगा। सो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट दे आर विथ मी, दे आर गोइंग टू परफॉर्म। लेकिन ये किस तरह के एक्टर्स है ये आप ही को जज करना है शो देखने के बाद। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। इतना सच बोलता हूं कि कभी कभी सच भी मुझे देख के भाग जाता है। दैट इज शंभू दादा। एनीवेज, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस you my actors to you, Mr. Krishna and Sudesh. सबसे पहले इस खामोशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। अब भी ताली नहीं बजाई आपने, बहुत अच्छा लग रहा। थैंक यू। देखो क्या है, मेरा सुनकर मोहित हो गए थे। तो अभी तक उस डेज में दादा ने कहा ना, शंभू दादा, ये मिठुन दा ही है ना, इसलिए थोड़ा बहुत होता है ऐसा। एनीवेज, ये दोनों बहुत फेमस है ऑलरेडी। लेकिन ये जोड़ी हमारी ड्रामा कंपनी में, इस ड्रामा कंपनी में क्या करेंगे और क्या करने जा रहे हैं, ये फैसला आप पे छोड़ूंगा। क्योंकि है तो दोनों एक नहीं, है तो दोनों अलग अलग जी। लेकिन आपको लगता है एक, है ना? ये जोड़ी आपने तोड़ दी दादा। ये तो हमेशा कोई हमारा अलग अलग नाम नहीं लेता ना, कृष्णा सुदेश। वो लोग कृष्णा सुदेश ही कहते हैं। मतलब इनका बेटा भी मार्केट में जाता है ना अमृतसर में, लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा जा रहा है। तो अलग अलग तो नाम। वो भी बताना है, जो कश्मीरा शाह है वो भी मंदिर में जाके यही कहती कब शादी होगी मेरी कृष्णा से, कब सुहागरात मनाऊंगी दोनों से, ये भी बोल। खैर, अभी मुबारकबाद दे, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है। इसमें भी मेरा ही नाम लगाएगा ये घटिया। बकवास नहीं करना दादा। दादा अगला बुला लेते हैं नहीं तो। हाँ वही, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे इसका तो अंदाजा अभी लगा लीजिए। सेकंड, मैं जिन्हें बुलाऊंगा वो है संकेत। संकेत, नेचुरली संकेत नाम दिया है तो कुछ ना कुछ तो संकेत दे ही देगा। और हमारे इस ड्रामा में क्या संकेत देगा, इस देखने के लिए मैं भी बैठा हूं। क्योंकि बट यकीन दिलाता हूं कि जितना टैलेंटेड ये लड़का है, ये डेफिनेटली कॉमेडी की दुनिया में कोई ना कोई संकेत लेके ही आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तुम कुछ बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम आई लव माई कंट्री एंड आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, थैंक यू, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं जो इस ड्रामा कंपनी के पात्र बनते हुए आपको नजर आएंगे। और ऑफ कोर्स दादा का आशीर्वाद है। दादा के आशीर्वाद मतलब बोल के मैं दादा को एजेंट नहीं बनाना चाहता। नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ तो आगे बोलो। हमारे शंभू दादा है जिनके सपोर्ट से ये ड्रामा कंपनी चलेगी। ये उनकी कंपनी है एंड इनसे हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दादा की कॉमिक टाइमिंग ले लो, दादा का एक टीचिंग ले लो, फॉर एक्टिंग ले लो, हम हर तरीके से दादा से सीख रहे हैं एंड आपके सामने एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन देंगे। आप देखना ना भूलिए 16 जुलाई से
शाम को 8 बजे सोनी टीवी पर। सोनी टीवी पर, सिर्फ सोनी टीवी पर। थैंक यू। अभी मैं बुलाऊंगा, आप डेफिनेटली जानते होंगे, सायरन। यस, तानाजी। अभी तानाजी का क्या है, तानाजी को तो आप देख चुके हैं, बट इज अ फैंटास्टिक एक्टर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हमारे प्ले में इसके आगे मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। मैं इसको बोलता हूं लेकिन तानाजी, इनका पूरा नाम। ये लेकिन क्यों बोलता हूं, ये शो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करेगा ही जिसमें आपको लेकिन डालना पड़ेगा। लेकिन इसने क्यों किया, लेकिन इसने क्यों कहा, लेकिन ये क्यों करेगा, मिस्टर लेकिन तानाजी। जोर से ताली हो जाए लेकिन तानाजी। थैंक यू। अब बारी किसको बुलाया जाए, कृष्णा? आप भूल आप देखिए क्या है। दादा एक काम करते हैं, अभी उनको लंबा बुलाते लंबा हैं। लंबा लंबा बोलते बोलते कभी कभी ज्यादा ही लंबा हो जाता है। खैर मैं ये बोला, देखिए क्या हुआ कि मैं सोचा कि इतने सारे एक्टर्स हैं, एक खूबसूरत सी गुड़िया जिसकी आवाज सुरीली हो, बहुत टैलेंटेड हो, ऐसी मुझे लड़की चाहिए। मैं ढूंढने निकला कि ये मिश्रण मुझे कहां मिलेगा, तो मुझे मिश्रा मिल गई। चलिए बुलाते हैं सुनंदा मिश्रा। सुनंदा के बदले में सुनंदा क्यों बोला? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, सुनंदा फिर भी ठीक है दादा। लोग तो सुनगधा और सुगधा क्या क्या बोलते, सुनंदा फिर भी ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे स्क्रिप्ट में है, क्योंकि अगर सुनंदा नहीं कहूँ तो ये जो जो नाम ले रहे हैं ये सब उनको इसी नाम से बुला रहे हैं। सर मैं नहीं बुलाता हूँ। लेकिन एक आपने अच्छी बात बोली, पीछे मैं खड़ी थी, आपने बोला जो बहुत खूबसूरत है, तो हमने रिद्धिमा पीछे हमने कहा कि कौन तू है मैं हूँ, तो उसने बोला नहीं मुझे, मैंने कहा मैं नहीं हो सकती क्योंकि मुझे अपने नाम के साथ खूबसूरत सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई आने में। हाउ स्वीट यार, तो क्यूट चीज। चलिए बुलाते हैं और एक हमारे मतलब स्पेशलिस्ट हैं, आरू को बुलाते हैं। आरू को देखने के बाद आपको पता चलेगा, एक दुबला सा लड़का, आपको देख के लगेगा कि बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, और इस प्रोडक्शन में उसको खाना नहीं दिया जाता है क्योंकि शंभू दादा सब कंट्रोल करते हैं कि इतना नहीं खाना, इतना नहीं खाना, इतना नहीं करना। चलिए, तो दुबला पतला सा एक लड़का है। संभालते वहां बैठ के। सुना है कि साउंड्स के बारे में इनको बहुत जानकारी है, लाइटिंग के बारे में जानकारी है। अब मुझे ये देखना है कि वहां बैठ के ये शौक खाता है या किसी को शौक देता है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन चैलेंज करता हूं, ये कोई काम सही कर ही नहीं सकता क्योंकि सारा टाइम इसको खाने पे चला जाता है। शौक भी तो खाते हैं। क्या खाता है तुम? शौक शौक खाते हो? तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है? माइक्रोफोन खा गए? माइक क्यों नहीं चल रहा भाई? क्योंकि तुम माइक वाले हो, तुम्हें चलाना हाँ नहीं वो आता। बटन ऑन करके फॉल्ट आना होगी बोलिए। होगी थोड़ी, अभी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब बुलाते हैं जिन्हें आपने देखा है, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, जिन्हें आपने हर वक्त रोबोट के हिसाब से देखा है, लेकिन वो एक इंसान है, खूबसूरत सी लड़की है, इंसान है। वो भी हमारी ड्रामा कंपनी में, ड्रामा कंपनी के और एक हसीन किरदार रिद्धिमा। लेकिन यहाँ रोबोट नहीं है, एक और नई नई चीजें लेके आती हैं,
और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप हंसेंगे 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 और इनकी गलती से रोएंगे 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 है ना? या कोशिश तो वही है. आप कोशिश भी करती हो कुछ बोलो, बोलना है तो. बोला है कि थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए हैं. एंड मुझे बस यहाँ पर इन सबके साथ स्टेज शेयर करने में ही जो थ्रिल मिल रहा है वो मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ इन वर्ड्स. एक्टिंग करके दिखा दूंगी. वाओ वाओ, द फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू एक्ट. No, right now. थैंक यू. Thank you. अब हम बुलाते हैं सभी के चहते एंड यू नो एवरीवन, अली असगर. अभी लड़की बनते हुए बड़ा टेलू अली, आप क्या दिखती हो. मैं अभी बोलने ही वाला था दादा, थैंक यू फॉर द मैनली एंट्री. तो अभी भी मैनली एंट्री दिया तो मैंने. क्या दिखती हो बोल के आपकी आंखें कुछ और बोल रही है दादा. देखो मैंने ये कहा कि तुम बहुत सुंदर लगती हो जब लड़की बनती हो. अच्छा और तुम्हारे जो वो क्या? नशीले आंखें, अच्छा. जो लिप वाइटिंग, तुम्हारी आंखों में जो वो आती है, आप समझे, अंदर से जो. अब वो सामने आप बैठते हो तो यही होता है ना अच्छा, सर. खामोश. कुछ बोल रहा है तो बोलो. नहीं, बस यही कहूंगा कि 16 जुलाई से प्लीज देखिएगा, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे द ड्रामा कंपनी ओनली ऑन सोनी टीवी. हमारा काम खत्म. भाई ठीक बोला ना सब. हमारा काम खत्म, आपका शुरू. वो जो एक नानी उधर भी बैठी हुई है, ठीक बोला ना. थैंक यू. सिर्फ तांबे जी का यहाँ खत्म नहीं होगा. यहाँ पूरा जो प्रोडक्शन है सब ग्रैंड मदर नानियों की है. और एक एक इतनी कड़क है दादा, आप ऐसे डोंट बिहेव लाइक दिस. बोलो क्या भाई मैंने क्या किया. सब नानी को पूछना पड़ता है ठीक किया कि नहीं. अभी आप अपने सवाल. क्या करूं, जप्पी मारूं किसको. अच्छा नजदीक आ जा भाई. पहले इसके बारे में अगर आप कुछ बता दे तो बेहतर होगा. बिल्कुल. वी हैव बीन, सुदेश जी और मैं तो चलो बात ही अलग है, लेकिन अली भाई के साथ में कॉमेडी सर्कस काम किया है और सोनी से ही हम लोगों की शुरुआत हुई. और बिल्कुल, you know, I think I forgot to say that. Yes. But I think, you know, Comedy Circus and Sony, I mean, Comedy Circus is of course one of the many shows that we've done. But, you know, comedy as a genre, I mean, Sony has been fountainhead for, you know, all the talent that you see today in the comedy genre. You know, I feel like
some kind of a reunion because अभी जितने लोग कॉमेडी सर्कस से बाहर गए थे अभी सभी सोनी में वापस आ गए. So वो डेजा वो होता है सर, रिहर्सल करते करते भी होता ये है. थोड़ा रियूनियन पार्टी भी हम लोग प्लान करने वाले हैं बहुत जल्द. बाकी लोग भी आएंगे. आप नहीं होंगे. नहीं दादा. कॉमेडी सर्कस डेज याद आते हैं. जी तो दादा मेरा आपसे सवाल है कि इस शो के जब आप होस्ट रह चुके तो ऐसा कभी होता है कि जो टेंशन होती है जो स्ट्रेस होता है यहाँ पे आके आपका है ना इन सब के साथ घुल मिल के और हंसी मजाक करके आप भूल जाते कुछ ऐसा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखो भाई बात तो सही है. इट्स ए स्ट्रेसफुल लाइफ एंड स्पेशली एक्टर्स की लाइफ. तो क्या माइक बंद है क्या? नहीं चल रहा है. हाँ, एक्टर्स लाइफ एट लीस्ट वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ. बट यहाँ के बैठ के जो मैं एंजॉय करता हूँ एंड आई गो बैक होम एंड आई शेयर इट. और जब मैं उन्हें हंसता हुआ दिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी हमने काम करके आए हैं अच्छा काम किया. लेकिन उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं. कल मैं उनको बताता हूँ आज इसने ये किया है, आज इसने ये किया है. तो आई हैव ए फीलिंग, गट फीलिंग है कि इट शुड डू वेल. और आपका सवाल है कि डेफिनेटली एज लॉन्ग एज आई सिट देयर शंभू दादा एंजॉय करता है, बहुत एंजॉय करता है. और एक बात बताता हूँ कि एक ऐसा शंभू दादा है जो बाकी बातें बताई इनको नहीं बताना प्लीज. इनको नहीं मालूम वो जो पिज्जा के बारे में. बट मैं लंबा फेंकता नहीं हूँ. इनको लगता मैं फेंकता हूँ. फेंकता हूँ क्या? हाँ? नहीं ना? हाँ 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 हाँ. That's what's your answer. कि they keep me laughing all the time. They make me busy. Thank you. अच्छा मिथुन, हाँ? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ टुवर्ड्स योर लेफ्ट. ओ ज्योति. अरे ज्योति तू कितना बुढ़ा हो गया यार. कल तू अभी नहीं बोलना. नहीं बोलना. मैं तो आपको कब से जानता हूँ. खबरदार. हाँ बोल. अच्छा एक सवाल, एक्चुअली दो सवाल है कि व्हाट एग्जैक्टली lured you to do a role in TV, क्योंकि आज तक यह भी ओनली मिथुन चक्रवर्ती ऑन टीवी एंड एज एन एक्टर इन फिल्म्स और एज एन एक्टर इन दिस काइंड ऑफ ए टीवी शो, क्या डिफरेंस महसूस किया? देखो भाई एक्चुअली ये इनका नहीं था. इन्होंने कहा था कि मिठुन दा ही बैठेंगे. लेकिन मैंने कहा कि नहीं, दादा कहने से बहुत पर्सनलाइज्ड हो जाएगा. इससे ड्रामा कंपनी, अगर ड्रामा है तो मैं भी उनका हिस्सा बनना चाहता हूं. तो इसीलिए मैंने अपना नाम इसमें शंभू दादा कर दिया. अगर मैं बोलूंगा कि मिठुन दादा ये कह रहा है कि ये लंबा फेंकू है तो आपको ये यकीन नहीं आएगा. लेकिन शंभू दादा हो सकता है ना कि जैसे ये पढ़ दे. प्रदीप है दादा. अरे भाई हम तो वही कह रहे हैं, प्रदीप कह रहे हैं. तो ये सब चीजें जो है ना ज्योति भाई, तो जब तक मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा तब तक ये शो आपको लगेगा कि बहुत मिठुन दा और ड्रामा कंपनी के बीच में एक पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता था. इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसको मिठुन दादा से हटा के शंभू दादा कर दीजिए. एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज वहां स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के साथ टाइमिंग तो हर जगह सेम, वहां भी सेम, यहाँ भी सेम. वहां यहाँ आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं बहुत शार्प होनी चाहिए. बट इफ यू मिस इट, यू मिस्ड इट. And you have to create your own dialogues at times. मैक्सिमम टाइम. दादा हाय बड़ी. कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है अभी आपकी? अभी तबीयत मालिक की दुआ से. दादा नॉर्मली जो है फिल्मों में आपको कॉमेडी रोल्स करते बहुत कम बार देखा गया, तो यहाँ पे कॉमेडी के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको? कॉमेडी कोई बना नहीं सकता. इट हैपेंस. कॉमेडी इज ए सिचुएशन. कॉमेडी इज ए सिचुएशन. कभी कभी आप अपने घर में कॉमेडी बना लेते हैं. मुझे पता है कल मैं ज्योति को मिला था, ज्योति ने ऐसा किया और ज्योति के करने से आपको हंसी आई तो एक सिचुएशन बन गया. सो यू कैनॉट क्रिएट कॉमेडी. कॉमेडी इज ए सिचुएशन एंड उस सिचुएशन में कोई चीज उस समय के लिए बेसुरा लगे वही कॉमेडी है, या सुर में आके बेसुरा हो जाए वही कॉमेडी है. सो फॉर मी आई हैव डन फिल्म्स. अभी हाउसफुल किया, एंटरटेनमेंट किया, देन गोलमाल किया. आई हैव डन इट एंड दे हैव बीन one of the biggest hits of that year. And if you ask me, yes, I'm nervous. इतने सारे dangerous actors के बीच में मैं फंस गया हूँ. Yes. Sir, I have a question and a request as well. Sir, firstly, comedy as a genre has been taken very lightly in India.
because we have seen various cases due to comedy, people have faced issues. So what do you feel about that scenario? And secondly, I'd like to request Sudesh sir to sing something for us because he sings very beautifully. बिल्कुल सही पहचाना, ये सिंगर है। मैं पहले से बोल रहा हूँ ये आदमी सिंगर है, कॉमेडी में गलत लिया हुआ है। ये आपने कहा और इनसे पूछिए कि मैं बिहाइंड द कार्टून मैं क्या कह रहा था उससे, यही कह रहा था कि व्हाट ए वॉइस यू हैव। पहला सवाल, सेकंड सवाल उनका कि मुझे नहीं लगता है अभी कॉमेडी को किसी ने लाइटली लिया है, बिकॉज इट हैज बिकम द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस नाउ। इफ यू हैव ए कॉमेडी इन योर हैंड, आई कैन गारंटी यू इट्स a guaranteed 100 crores box office. Sir, lightly Take in it the on the TV, you have one after another. It's the biggest shows. हाँ कहिए सर। सर लाइटली इन द सेंस कॉमेडी को कॉमेडी की वजह से लोग कंट्रोवर्सीज में फंस रहे हैं, तो जैसे सर पिछले समय में कीकू शारदा जी जेल गए थे और बाकी दूसरे इश्यूज सर के पिछले। पर्सनली सर तो किसी के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैंने इस प्रोडक्शन हाउस को हम सब मिलकर डिस्कस किया है कि हम कोशिश करेंगे, इट्स ए फैमिली शो, विल स्टैंड बाय ऑन इट, एंड हम यहाँ किसी का मजाक उड़ाने नहीं आए, किसी के बारे में गंदी बात करने नहीं आए। हम अपना एक ड्रामा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अकबर आलम, अभी अकबर आलम में अकबर साहब हैं जिले इलाही, वो क्या क्या गलती करते हैं आज के जमाने में, वो देखने लायक चीज है। नीलू की शादी, अभी नीलू की शादी में ये 21 साल का लड़का लगता है। आप देखिए, यही है कॉमेडी। हम यहां तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। वी आर एटलीस्ट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, बट हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं काटना चाहते, ना कोई ऐसी बातें करना चाहते जिससे किसी को आघात लगे। उसके लिए हमने 2 साल पहले शो किया था और वो खत्म हो चुका है। खामोश। एक मिनट सर, एक गाना। सुदेश जी, मैं गाना सुनाऊं? हाँ, उसी में गा। थैंक यू। मैं सुदेश जी आप एक काम करिए सर, कि एक गाना आप नहीं सुना पाएंगे, मैं चाहता हूँ 1 मिनट में आप 7-8 गाने एक साथ सुना दीजिए। नहीं सुदेश जी, और सुदेश जी वो कर सकते हैं। आप लाइव में कोशिश करता हूं कि आप मुझे कोई भी हिंदी गाना किशोर कुमार का या कोई भी एक गाना दीजिए, मैं उसके 8 गाने बना के सुना। दिए जलते हैं, और जब मैं ताली बजाऊंगा आपको गाना चेंज करना होगा। क्या पता तुम गलत जगह, तुम्हें ताल का तो पता नहीं। सर क्यों फिक्र करते हो, बहुत पुरानी आइटम है हमारी। कर देते क्या है, मैं कृष्णा के बारे में थोड़ा बता दूं, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि देखो इनके मामा गोविंदा हैं, मेरे मामा शर्मिंदा हैं। और इनको कॉमेडी की कोई नॉलेज नहीं है। इनके मामा ने सिर्फ 4-5 स्टेप सिखा के मार्केट में छोड़ दिया है। कॉमेडी तो चलो सीख जाएगा थोड़े दिन। चलो ताली पे मारना, मुझे याद है। हाँ भाई, दिए जलते हैं। हाँ, दिए जलते हैं फूलों का, तारों का, सबका कहना है आज तुम आ गए हो, नूर आ गया, हलवा वाला आ गया, हलवा वाला आ गया। बाकी इसने कोशिश बहुत की है गलत जगह ताली बजाने की, लेकिन फिर भी क्या करें, टैलेंटेड बंदे हैं। हाय, मंच पे जितने भी फनकार हैं, मैं चाहूंगा कि एक एक करके सुगंधा से तानाजी तक अगर अपनी अपनी स्टाइल में अगर आप कुछ बातें हमसे शेयर कर सकें। अपनी अपनी स्टाइल क्या होती है? कौन है? नहीं, सवाल एक ही है कि सुगंधा आपसे शुरुआत करके तानाजी तक अगर अपने अपने स्टाइल में जो आप जिसके लिए आप जाने जाते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी चीजें अगर हमारे लिए कर डालें। उनका मतलब है कि ये ना हो कि एक ही बंदा बोले, सबको मौका दे रहे हैं। उनको भी थोड़ा आप अपने स्टाइल एक लाइन गा दो, फिर कृष्णा जी, कृष्णा, फिर तुम तुम्हारे स्टाइल में, तुम्हारे तानाजी, अली भाई, मैं भी गाऊं? जो भी जिस चीज के लिए आप। सर लड़की में बोल दे, लड़की में। बाराना दे, बाराना दे, बाराना। हाँ बोलो। हाँ बोल। मेरा तो अपना स्टाइल कोई है नहीं,
बस दूसरों का ही लिया हुआ थोड़ा बहुत है, इधर उधर का। बाकी मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे कि बोलती है। लेकिन भाई इधर ड्रामा कंपनी को आशीर्वाद दो बच्चों, बहुत प्यार दो, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं और यही कहूंगी ड्रामा कंपनी। मिथुन दा बेटा जीते रहे। हाँ कृष्णा भाई मैं गाना सर 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 आज बहुत ही अच्छा लगा ड्रामा कंपनी में आके। सर 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 ओ मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी जिससे मेरी सर 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 शादी होगी आज मैंने वो लड़की सर 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 सर, सर। अरे बेटा नहीं नहीं, उधर देख उधर। सबसे ज्यादा ही ऐसा। नहीं मैं लड़की में अली की बात कर रही थी, ये लड़की। संकेत अब मैं तो जाना चाहता हूँ, ये मुझे सुन के अच्छा लगा पहली बात तो। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि यार सॉरी बाबा, इनका शो आ रहा है, इनको बहुत ज्यादा प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो प्यार लो तो गाना है ना। तो कैंसल, इनका शो देखो और हंसो, हंसो हंसाओ, ये भी गाना है ना। तो मतलब देखो हंसो बोला तो खासो हो गए। ठीक है, एक मिनट वापस ये पूरा कट कर दो सब वापस। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सच में मत करा कट। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ड्रामा कंपनी करके हमारा नवा शो आ रहा है, दैट इज ऑन सोनी टीवी 16 जुलाई से रात के 8 बजे। हाँ रात के 8 बजे शनिवार रविवार, मतलब 9 बजे तक फ्री हो जाओगे आप लोग। जो भी तुम्हारा प्रोग्राम है वो पहले फटाफट आया ऑफिस से कि बैग भी रख दो, फटाफट टीवी लगा के बैठ जाओ ऐसा। तो कंटिन्यू करो, आई लव माई कंट्री। एंड फरहान आपसे कुछ बोलेंगे, बस आप देखिए एंड एंजॉय द शो। शाम को 8 बजे सैटरडे संडे, यस बच्चों के साथ। दादा दादा नहीं दादा नहीं, आप प्लीज साड़ी देना। मैं बिना गेटअप के बोल ही नहीं सकता। गाने का नहीं सलमान 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 प्लीज। शाम को 8 बजे शनिवार की रात को ये प्रोग्राम हमारा है, जो ड्रामा कंपनी देखना ना भूलिए अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो है सर बिल्कुल भी ऐसे वल्गैरिटी नहीं है सर। एंड एंजॉय द शो। थैंक यू। मोर क्वेश्चंस? अरे कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं, मैं तो बुला लिया गया हूँ करने के लिए, यहाँ पे लाइटिंग ऊपर ही खड़ा रहूंगा, मेरे को कुछ और आता ही नहीं ना। मैं ना ये कर सकता हूँ ना वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वही करूंगा, खुश रहूंगा। अली भाई अली भाई मैं क्या करूं? सबसे पहले तो दादा बहुत अच्छा लगा आपके साथ स्टेज शेयर करके। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू, लव यू। रिद्धि हेलो, वेलकम टू द ड्रामा कंपनी। अब सब सबका नकल उतार रहे हैं तो मैं भी क्यों चुप रहूं? मुझे भी आती है नकल उतारनी। ये कौन है? सच में आपने गैस नहीं किया? नहीं। हेमा जी? हाँ। इससे अच्छा तो मैं करता हूँ। करके दिखाओ। सोचने वाली बात तो ये है, किसका अच्छा था? दादा लव यू। दादा मैं ओरिजिनल थी। यस। हाँ तो तुमने मेरा कॉपी किया।
आपका श्रीदेवी 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 तो बाबा बोल रहा है करने को। भैया भैया आप पैसा नहीं तो क्या हुआ, चलेगा, बाद में ले लूंगी। ओके सुदेश तो कर चुके हो ताना जी। परसों थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay, we'll take last two questions. दादा आपने सैकड़ों फिल्में की हैं, सैकड़ों किरदार निभाए हैं, तो शंभू दादा में कोई ऐसा किरदार कभी कोई घुसेगा उसमें? शंभू दादा खुद ही एक करेक्टर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा लंबा लंबा शायद आपने देखे नहीं होंगे। मतलब लोगों को मैं बोलता हूँ लंबा फेंकता नहीं, मैं लंबी लंबी उड़ाने लेता हूँ कि वर्ल्ड के ऐसे कोई आदमी नहीं है जिन्हें मैं जानता नहीं। और वो किरदार देखने के बाद आपको पता चलेगा कि शंभू दादा कौन है। आपको गेस करना होगा कि मैं किसी का ना किसी का तो कोई है हमारे इंडस्ट्री में जो बड़ा बड़ा फेंकता है, उसी को हाँ सर। हाँ दादा, मैं वही पूछ रहा था। हाँ, ये शंभू दादा नाम कैसे डिसाइड हुआ? ये अचानक आया कि हमारे मोहल्ले में था ऐसा ही। उसको अगर कुछ बात बोलो, यार मेरी एक बात, मैं जब बचपन में मैं गया था वो चालू हो जाता था। और हमको मालूम था अभी लंबा फेंक रहा है, अभी कहाँ जाए, बड़ा आदमी है, उम्र वाला है, चला जाऊंगा तो गाली देगा, नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं। तो वहां से शंभू दादा अचानक आ गया, भाई शंभू दादा का रोल करते हैं ऐसे। अली भाई सर, फॉर अ चेंज यू आर प्लेइंग योरसेल्फ, मतलब यू आर एज अली, नॉट इन अ फीमेल गेटअप। तो नो 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 नो, एवरीबॉडी इसमें भी है, वो दादा का डिमांड है। ये हैज टू बी। एंड लेकिन सिर्फ लड़की नहीं बनेगी, उसमें किरदार होंगे, नया नया प्रेजेंटेशन होगा। दैट विल बी द यूनिक पार्ट ऑफ इट। ओके अली भाई, लास्ट रिक्वेस्ट, एक चिंटू ऋषि कपूर का एक झलक। Oh yeah, of course. I would like to thank everybody, especially Mithun. Thank you for starting change with me. और आप प्लीज एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हाईएस्ट रिगार्ड्स टू संजू बाबा एंड लॉट्स ऑफ लव टू संजू बाबा। आप फंस गए हैं। Okay. He does Neil Nitin Mukesh also? Hey, we haven't seen Neil Nitin Mukesh show. I haven't seen नील नितिन मुकेश कह रहे हैं। एक्चुअली वो है, वो 3 नाम वाला हो, और उसका नाम है बोलो दादा, और उसका नाम है नील नितिन मुकेश। राइट। नहीं, आप बोलो। रॉन्ग। नील नितिन निदेश। थैंक यू, लव यू बाबा, थैंक यू। बट मैं इतना ही चाहूंगा कि दे आर ऑल फैंटास्टिक एक्टर्स, सब मिलके अच्छी तरह से काम करें। मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। इतनी कम उम्र में कम लोगों के साथ बैठ सीखूंगा। हंसने की क्या बात हुई? तेरे को क्या, मैं क्या लगता हूँ? चलो रेडी एंड चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे अलग होगा, ऐसा शो आज तक आया नहीं और आगे का मैं बोलूं ऐसा शो होगा। आज तक सबने ये देखा है, सुना है फिल्मों में,
या लोगों के एक्टरों के मुंह से सुना है कि मैंने थिएटर किया है, मैं थिएटर का कलाकार हूँ। पब्लिक घर पे देखेगी कि थिएटर क्या होता है, थिएटर में गलतियाँ क्या होती हैं, उन गलतियों से कॉमेडी कैसे निकलती है। ये कॉम्पिटिशन सर तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये सब शंभू दादा बताएंगे। मैंने यही बताया है कि ये थिएटर आपको टीवी पे देखेंगे आप, थिएटर में गलतियां क्या होती हैं, असल थिएटर क्या होता है, ये नेचुरल कॉमेडी जब स्टेज पे देखेंगे वो आपको बड़ा मजा आएगा। ये माइक अभी दिया, दोबारा बोलो। दोबारा मैं ये कह रहा था कि हमारा द ड्रामा कंपनी शो ऐसा है कि आज तक टीवी पे फिल्मों में जैसे एक्टर जितने भी इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं कि मैंने थिएटर किया हुआ है, ये थिएटर का कलाकार है। असली थिएटर क्या होता है वो आप टीवी पे देखेंगे 16 जुलाई रात को 8 बजे के थिएटर क्या होता है, थिएटर में क्या क्या गलतियां होती हैं, उन गलतियों से कॉमेडी कैसे निकलती है, ये सब कलाकार आपको दिखाएंगे। तो जोरदार खुद ही ताली। माइक मत यूज कीजिए। या रोलिंग दोस्त को थोड़ी बहुत सारे शो है सोनी में। कॉम्पिटिशन ही हम किसी और शो को डिस्कस नहीं करते। फिलहाल इसी शो को अच्छा बनाने के टेंशन में भी हैं और एक्साइटमेंट भी है। सारे इमोशन जो है वो एक साथ आ गए हैं और इसी शो पर ध्यान है हमारा। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा चैनल है और सेम टाइम स्लॉट है तो फिर कॉम्पिटिशन होता है। तो अभी फिलहाल आप सोचिए सोनी पर ही सबसे ज़्यादा आपको कॉम्पिटिशन। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे आप लोग कह रहे हो दूसरे की जो बेटी थी वो तो अमेरिका गई, आपकी कहाँ जाएगी। तो आप मेरी बेटी की शादी मुझे मुबारकबाद दो, मेरे शो की मुबारकबाद दो, हमारा शो हिट हो। हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, सबके शो हिट हैं, हिट रहेंगे, लेकिन हमारा शो बहुत सुपर डुपर हिट होगा। मुबारकबाद दो, मुबारक मुबारक। स्ट्रेस उनका अपना होगा, जो भी उनकी शूटिंग चल रही है, फिल्म की भी शूटिंग चल रही है और हम लोग अपनी रिहर्सल्स में बिजी थे, वरना हम जाते हैं पर्सनली तो सब एक दूसरे के लिए केयर भी करते हैं। और हम भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि कपिल का भी शो बढ़िया चले, उनका भी शो चले और हमारा भी शो चले। सारे कॉमेडी एंटरटेनमेंट जो एंटरटेनिंग शोज होते हैं वो सभी चलने चाहिए, उससे सभी को फ़ायदा होगा, सारे एंटरटेनमेंट को फायदा। हाँ, मैंने मैसेज किया था बिकॉज रिहर्सल चल रहे उसकी वजह से जा नहीं पाया एंड रिप्लाइड बैक। खड़े के पीछे आ क्या देखो वो पीछे आ जाए। वो सब फियर हमको लेकर के चले, मतलब हमको अभी फिलहाल अपनी स्क्रिप्ट बनानी है, हम अपने स्क्रिप्ट में अपने कैरेक्टराइजेशन में ज़्यादा रुकी है उसकी। ये देखो फ्रैंकली कंपैरिजन वगैरह इंटरनली कुछ नहीं होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो लोग कहते हैं। बिल्कुल हमारे लिए वो भी कलीग है, हम भी कलीग है। सबसे अच्छी बात ये 8 बजे हमारे 9 बजे आ रहे ऑडियंस को डबल डोज ऑफ कॉमेडी मिलेगा। तो आई थिंक पीपल शुड एंजॉय दैट। क्यों करना चाहिए?
मुझे लगता है इट्स वेरी चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा लगता है कॉमेडी करना बहुत आसान है। आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू मी बिकॉज मैं दूसरे और किसी को और उससे बाहर आके करना और ऐसे अच्छे कलाकारों के साथ हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड फॉर मी इट्स अ चैलेंज, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नर्वस हूँ क्योंकि कॉमेडी इज जस्ट लाइक दिस, इट्स जस्ट दैट यू मिस द रिफ्लेक्स, यू मिस दिस। अगर इसमें मैं अपने आप को समा पाऊँ, इसमें मैं अपने आप को अच्छी तरह से इनकी तरह इनको सभी को लेकर एक अच्छी मतलब कोई भी नाटक जो करने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से पेश कर सकते, इससे बड़ा आनंद मिल जाता है। मिथुन का आपने सबसे पहली बार कब परफॉर्म किया था ड्रामा? हाँ जी, अपनी जिंदगी में मैं कब किया था? हाँ, पहली बार। कभी कोलकाता में मेरी उम्र कम थी, ठीक है। अभी ये बोलते तो मेरी अभी पता चल जाएगा मैं क्या हूँ। तो मैं जैसे इस ड्रामा कंपनी में फेंकता हूँ तो मैं मेरे ख्याल से 10-11 साल का हूँ। एक्चुअली आई यूज्ड टू डू मोर ऑन रोड कॉर्नर शोज बिकॉज थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामास होते थे, तो मैं ज़्यादातर स्ट्रीट कॉर्नर्स में Can we ever expect a reunion of drama company and the Kapil Sharma show, all of you Why not? coming together for a Why not? long? It's not up to us, it's up to Sony. Yeah, it's up to the channel. Channel करेगा तो हम खुशी सब करेंगे, साथ में करेंगे। मैं एक बात बताऊं कि ये बहुत सारे सवाल यही करेंगे कि वो आज नहीं तो कल तो लोग कंपेयर करेंगे वो शो और ये शो, देखिए मुझे लगता है नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आज में वेरी फ्रेंकली ये सारे टैलेंटेड बच्चे हैं एंड कपिल इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टैलेंट वी हैव इन द कंट्री। दिस शो इज वेरी बिग, ह्यूज। अगर हम थोड़ा सा भी उनकी तरह हो जाए आई थिंक इंडिया करेंगे। मिथुन सर, आज आपको आज की कॉमेडी और पहले की कॉमेडी में क्या अंतर दिखाई देता है? कॉमेडी में कोई अंतर नहीं होता, वो भी एक चीज टाइमिंग, दिस इज ऑल्सो टाइमिंग। चेंज जो हुआ है जनरेशन चेंज हुआ, उधर का एक जनरेशन था, अभी एक जनरेशन आज ये जो करते हैं आज की तरह करना पड़ता है। और उस समय जगदीप जी थे, रॉनी वॉकर जी थे, वो अपने हिसाब से करते थे। अभी आज के टाइम के साथ ये जो बच्चे देख रहे हैं ये आज की तरह टाइमिंग में चेंज नहीं होगा। एक्टिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग। 1 2 3 4 से आधा हो गया तो आप मिस कर गए, तो बराबर तालते गिरे, बहुत अच्छा। सुनील ग्रोवर नहीं है आपके साथ, तो सुनील ग्रोवर को हम कितने एपिसोड्स में देख पाएंगे? बिकॉज उनकी भी होने की बातें चल रही है शो में। हाँ, तो हम तो सब चाहते हैं कि सुनील ये शो बिल्कुल ज्वाइन करें बिकॉज सुनील बहुत बढ़िया करते हैं। और आई थिंक वो नीति आपको करेक्ट बता पाएंगी, नीति बताएंगे आपको करेक्ट कि कब ज्वाइन करेंगे। हमको सबको गुड लक विश करने के लिए आए थे जब पहला एपिसोड था। सुनील वॉज हियर जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो बहुत गुड लक देकर गए। कृष्णा, भारती ने कहा था कि उन्हें ये शो ऑफर नहीं किया गया था, क्या ये बात सच है? शो ऑफर नहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ सर, मिथुन सर, क्या आप कोई रीमेक मूवी अपनी दोबारा से बनाना चाहेंगे? हाँ, अगर आप कोई चाहें कि रीमेक बने आपकी कोई मूवी। मैं इतना बोर कर चुका हूँ और दोबारा बोर होना चाहते हैं भाई। 300-350 से ज़्यादा फिल्में होंगी, जैसे 200 फिल्में मैं खुद अपने देख नहीं पाता, लेकिन कुछ है जो लैंडमार्क है, इसलिए सस्टेन कर गया इतने सालों तक। मैं सब बड़ी बात करके आपको इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। 350 में सिर्फ 200 मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ देखना नहीं, लेकिन तो इन्वेस्ट कर जाएगा। तो बाकी जो है डेफिनेटली कुछ लैंडमार्क्स हैं, प्लैटिनम जुबली, गोल्डन जुबली एंड व्हाट नॉट। लेकिन दोबारा मैं वही किरदार दोबारा निभाऊँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ना दर्शकों के पास इतना टाइम है कि इतना बोल। I'm sorry, I won't do it. Yes. And thank you very much. Have your dinner quickly. I'm also feeling hungry. I'm not well. Good bola. Thank you very much. Okay. Bye-bye. Thank you. Thank you.